Hello everyone and welcome back to another video. This is Sakshi and I make educational content. I'm a CS aspirant and I am here to help my other aspirants and my CS family in whatever way I can. By the title of the video, you already know what today's video is all about. So without any further ado, let's get into the video. If I had to sum up the whole thing in one particular sentence, it would be this. Forget about your goals, focus on the systems. And by system, I mean the processes. You know what I've realized that हम अपना एक गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे CS एग्जीक्यूटिव सीट या CS प्रोफेशनल पास करना है एंड वी ओनली हैव आवर एम्स देयर. हम भूल जाते हैं दैट टू रीच देयर वी हैव टू डू अ सीरीज ऑफ थिंग्स कॉल्ड प्रोसेस. Okay, it's a step-by-step thing which will ultimately lead us to our final goal, our final destination. But हम इतने inclined हो जाते हैं, as I said, towards our ultimate goal कि हम उतना focus नहीं दे पाते towards the process, and that is exactly what we do wrong. Hey, but don't you worry, I got you covered. I list down little things that you should definitely do because these are so important to do, and I've realized it over a period of time, which will definitely help you clear any stage of your CS exam. So coming to the very first and the important thing, that is to focus on conceptual clarity rather than mugging up and revising and doing all of things, because you know what, जब तक तुम्हें उस चीज़ की concept की clarity नहीं होगी, you will not be able to interpret it that way, and ultimately कुछ time के बाद you will forget all of it. But अगर तुम्हारे मन में concept clear है, you will ace your examinations. Number 2, so जब हम किसी भी फैकल्टी के लेक्चर्स लेते हैं, सो व्हाट वी ऑफन डू इज़ कि हम लेक्चर्स देख लेते हैं, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर हम छोड़ देते हैं. बट दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच. इट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द चैप्टर, किसी भी टॉपिक का लेक्चर कंप्लीट होता है, जस्ट ट्राई एंड रिवाइज इट the next day before starting with any other lecture or any other topic, and this way, trust me, you will have multiple revisions of single topics, plus आपके मन में वो चीज़ बैठ जाएगी and you will never forget it, and this way you know what you can do. तो ये तो था जब आपका कोई particular topic complete हो जाए, you have to revise it before starting with any new topic या फिर न्यू लेक्चर. ओके, बट वंस यू आर डन विथ योर चैप्टर, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पास्ट ईयर के पेपर्स उठाने हैं, आपको स्कैनर्स उठाने हैं और आपके ICSI मॉड्यूल के पीछे ICSI मॉड्यूल के पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं. सो यू हैव टू गो थ्रू दोज क्वेश्चंस एज वेल टू जस्ट फिगर आउट कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू ग्रास्प द टॉपिक बेटर एंड आप उस टॉपिक को बेटर प्रिपेयर कर पाओगे. बिकॉज राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग हर एक चैप्टर का आपको पता होगा कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड केस स्टडीज पूछते हैं, एंड दैट वे आप कितनी ज़्यादा एक्सेलेंट प्रिपरेशन कर पाओगे फॉर दैट टॉपिक. एंड आप सोचो, आप हर टॉपिक को इतने अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अल्टीमेटली व्हेन आपके लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, आप एक बार कोचिंग में आपका पूरा रिविजन हो जाएगा, you will be the master of those topics. I am going to do this for sure, and I would suggest you to do that too. The third thing, this is the biggest myth, and that is there exists a perfect timetable. Trust me, हर एक इंसान डिफरेंट होता है, हर एक इंसान की क्वालिटीज़ डिफरेंट होती है. Some might study at 4 AM in the morning, some might study at afternoon, during 2 to 4 PM or something between that time, or some maybe night owls. But you do not have to try and copy them. You have to see what suits you the best. आप देखोगे अगर वो इंसान 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, you will see someone studying only for 4 hours, and you will what most of us try to do is copy them. Oh my god, that he is studying for 8 hours, I should study too. He or she is studying for 4 hours and still acing every exam. So there exists नथिंग लाइक परफेक्ट. कोई परफेक्ट टाइम टेबल नहीं होता, कोई परफेक्ट स्टडिंग आवर्स नहीं होते हैं. यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट. ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी को मास्टर करना है, बाकी सब चीज़ें विल इवेंचुअली फॉल इनटू प्लेस. रोज भले सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, बट ट्राई एंड बी कंसिस्टेंट. फोर्थ थिंग, इट्स ऑलरेडी अ रिपीटेशन, बट प्लीज़ कुछ भी और पढ़ने से पहले स्टार्टिंग विथ अ न्यू डे, प्लीज़ ट्राई एंड रिवाइज जो आपने एक दिन पहले पढ़ा है. आई कांट एम्फसाइज इनफ ऑन दिस थिंग. सो लेट्स डू दिस एंड ace our exams. So coming to the fifth thing, and that is
मैं इस चीज़ को बहुत बार अपनी वीडियोस में बोल चुकी हूँ, बट आई स्टिल वांट टू टेल यू दिस दैट आपके कितने भी अच्छे नोट्स हो, आप जहाँ से लेक्चर्स ले रहे हो, आपने आपके खुद के सेल्फ नोट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, दे माइट बी द बेस्ट नोट्स इन द होल वर्ल्ड, बट टेक देम एज अ रेफरेंस एंड फोकस ऑन द ICSI स्टडी मटीरियल। तुम एक बात सोचो, वो अगर इतना बड़ा मॉड्यूल हमें इशू कर रहा है, जस्ट इमेजिन वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम वो स्टडी मटेरियल पढ़ें। एंड ट्रस्ट मी, मैंने देखा है मेरे एग्जाम्स में डायरेक्ट मॉड्यूल की लाइन से क्वेश्चंस आए हैं। सो आई कैन नॉट टेल यू मॉड्यूल्स की इम्पॉर्टेंस, बट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपका ICSI का स्टडी मटेरियल इज़ सो इम्पॉर्टेंट, सो डू नॉट एट एनी कॉस्ट स्किप इट। Okay, to the final and the sixth thing, and that is revisions. बोल रही हूँ, जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाते ना, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि मतलब बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो गया कि कितनी बार पढ़ो उतनी बार पढ़ो, एंड जब आप एग्जॉस्ट हो भी जाते हो उसके बाद भी पढ़ो, बिकॉज रिविजन्स आर द की। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एज कि ये तुम्हारा CS का कोई भी स्टेज है, एग्जीक्यूटिव, C-suite या प्रोफेशनल, यू हैव अ लॉक इन हियर दैट एंड यू हैव द की। ओके, द लॉक इज the number of revisions that you'll do, and the key is the consistency. So you have to master consistency and your revision techniques like a pro, and I'll tell you how. So here are 3 techniques that you can incorporate. These are revision techniques. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले पुराना पहले पढ़ो. This is the best memorizing technique and the revision technique. Second is 1:1:1 revision strategy. Now if you do not know about this strategy, it's like मैंने जो भी आज पढ़ा है, I will study it one day later, again 1 week later, and again 1 month later. And this is proven to be one of the most effective study techniques, revision strategies ever. Okay, now अगर ये किसी को उतनी प्रैक्टिकल नहीं लगते, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में उतनी प्रैक्टिकल नहीं लगती थी, क्योंकि आई यूज टू हैव सेपरेट टाइम टेबल्स एंड आई यूज टू प्लान द वीक अकॉर्डिंग टू माई ओन दिस थिंग. अगर आपको ये नहीं फॉलो करना है, सो आई विल टेल यू व्हाट, आपको मिनिमम 3 रिविजन्स करने हैं, लाइक 3 रिविजन्स, हार्ड कोर 3 रिविजन्स. नाउ आई विल टेल यू हाउ. आप जब फर्स्ट बार रिवाइज करोगे, आप पूरा पोर्शन पढ़ोगे एंड यू विल मार्क द टॉपिक्स जो आपको अनक्लियर है, या यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट टॉपिक्स, या आपको कुछ भी डाउट है. देन यू विल क्लियर दोज डाउट्स, यू विल गो टू योर टीचर्स, मेंटर्स, आप उनसे वो डाउट्स क्लियर करोगे. सेकेंड रिविजन में यू विल फर्स्ट स्टडी दोज अनक्लियर एंड द टॉपिक्स विच यू आर नॉट श्योर ऑफ, जो आपने जाके अपने टीचर्स से समझे. एंड देन यू विल रिवाइज जो आपको क्लियर टॉपिक्स है फॉर योर सेकेंड रिविजन. फिर जब आप थर्ड रिविजन करोगे ना, आपके पास एक भी ऐसा टॉपिक नहीं बचना चाहिए जिसमें आपको डाउट हो या फिर आप अनक्लियर हो. जब आप ये 3 रिविजन सक्सेसफुली कर लोगे एंड उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, एंड देन जब आप रिवाइज करोगे ना, ट्रस्ट मी, आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एंड यू विल हैव ए प्रिपरेशन एट अ नेक्स्ट लेवल. सो आई हैव टू ऐड वन मोर थिंग रिगार्डिंग नोट टेकिंग. आई नो सबकी प्रेफरेंस अलग रहती है, सबके वेज अलग रहते हैं, बट दीज आर थिंग्स दैट यू कैन डू. जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आप अगर ये चीज़ें करोगे, सो यू विल बी एबल टू रिवाइज योर टॉपिक्स बेटर. द फर्स्ट थिंग इज, जब आप अपने लेक्चर्स देख रहे हो या आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है कोई टॉपिक, आप उस टॉपिक के बाजू में अपने नोट्स में उसका इंग्लिश वर्जन लिख लो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश वर्जन? इट्स कि आप हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में अपना इंटरप्रिटेशन लिख लो, सो दैट जब आप खुद से रिवाइज कर रहे होगे, आप खुद से वो टॉपिक स्टडी कर रहे होगे, सो यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट द टॉपिक बेटर. The second one has to be index mapping. Now I know a lot of people know what index mapping is, और मैंने ये चीज़ की थी, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने की थी. Now आप अपनी मॉड्यूल का इंडेक्स खोलोगे, अपने स्टडी मटेरियल का इंडेक्स खोलोगे, एंड वहाँ पे जो टॉपिक दे रहते हैं, सपोज RBI, उसके नीचे बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए रहते हैं. ओके, अब आप उस सब टॉपिक को सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करोगे. आप कुछ भी उस टॉपिक का की हाईलाइट ले लो, या कुछ भी ऐसा एक सेंटेंस में अपने अकॉर्डिंग लिखो कि आप वो एक सेंटेंस पढ़ो और आपको पूरा वो टॉपिक याद आ जाए. एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू रिवाइज. बट आप ये सिर्फ तब कर पाओगे जब आप यू हैव स्टडीड द मटीरियल वेरी नाइसली, और आपके कम से कम 3 से 4 रिविजन्स हो चुके हैं, यू आर वेल वर्स्ड विद द टॉपिक्स. द थर्ड वन इज़ माइंड मैपिंग. नाउ अब आपको कोई भी टॉपिक लेना है, and you just have to convert the whole topic into a chart form. जैसे RBI, you have to just draw branches and you have to put everything in one sheet of paper. आपको उसको एक चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है पूरे चैप्टर को, so that when you revise it, आपको सिर्फ एक सिंगल शीट ऑफ पेपर उठाना है and you will be able to revise the whole topic in a very efficient manner.
एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि इंडेक्स मैपिंग और माइंड मैपिंग आप खुद अपने आप से बनाओगे इन अ लैंग्वेज दैट यू प्रिफर एंड इन अ वे दैट यू अंडरस्टैंड, ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद द नोट्स एंड इट विल हेल्प you in immense ways. Yes, that was it for today's video. I hope you really find it helpful, and just tell me if you need anything. You can comment down below. I will revert back as soon as possible, and please do not forget to subscribe to my channel and share this video with the other aspirants as well. Help them and make our community a better place.